Hi dear students, my name is Shubha and today I am going to discuss about human circulatory system. So those students who are in class 10th will be able to understand the entire concept of how the functioning of the heart is going on inside our body. So as you can see on the board, there is a small flow chart which I have drawn, and I am very sure if you are in class 10th, you must have went through this flow chart in class 9th. Let us understand how this flow chart is going to help you to understand the topic like human circulatory system. Talking about the cell, you already know that when cell comes in group, that means a lot of cells come together, they form tissue. So tissue is nothing but a group of cell. When many cells together fold, they form different organs. I can give you one example, like stomach can be one example of organ. Organs can be internal or external. Moving ahead, let's just talk about the organ system. So I can tell you different type of organ system. For example, if stomach along with small intestine, large intestine, buccal cavity, teeth, tongue and all its part, when it comes together it forms organ system. And if I talk about the organism, whatever organism you are discussing, like in this case we are going to discuss about human being. So let's just understand how this topic is going to help you to understand human circulatory system. If I talk about cells of the human circulatory system, you are going to find out that there is a cell named as red blood cell, and then there is second cell which is named as white blood cells, and then there are platelets. They have other names as well, like red blood cells are also called as erythrocyte. White blood cells are also known as leukocyte, whereas platelets are known as thrombocyte. क्योंकि जो क्लॉट होता है, जो हमारी कभी भी बॉडी में अगर कट हो जाए और क्लॉट बनता है तो उसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में थ्रोम्बस बोलते हैं, and that's why these cells are called as thrombocytes. When these cells come together, they form a specific type of tissue. I mean, there are two tissues. The very first is blood, and out of same blood there is another tissue which is being formed, which is lymph. So the type of tissues we are going to discuss in this topic is blood and lymph. Moving ahead, if I talk about the organs of the human circulatory system, there is a very major organ you all know, that is हार्ट, राइट. और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये हार्ट जो होता है ये इंटीग्रेटेड मैनर में काम करता है हमारे दोनों लंग्स के साथ. ओके, एंड देन देयर आर स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज ब्लड वेसल्स. When all these things along with blood, lymph and all these cells, they come together, they form the organ system which is called as circulatory system. So here you understand that when I talk about the cells of the circulatory system, red blood cells हैं, white blood cells हैं, platelets हैं, इनके दूसरे नाम होते हैं erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. Moving ahead, when these cells come together, ये एक तरीके का टिश्यू बनाते हैं जिसको ब्लड बोलते हैं. और अगर हम रेड ब्लड सेल्स को रिमूव कर दें तो whatever is left and is white in color, then it is called as lymph, which is again a type of fluid connective tissue. Moving ahead, organs की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हार्ट है, लंग्स है और उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स हैं. हम इन सारे ऑर्गन्स को पढ़ेंगे एक एक कर कर. ये सारे ऑर्गन्स व्हेन दे कम टुगेदर दे फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम. और जिस ऑर्गेनिज्म में हम ये सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन बीइंग. अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में. ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी में, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस ऑर्गन, लोकेशन की बात करें तो ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है. कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, बट ऐसा नहीं है. हार्ट का जो लोअर पोर्शन होता है इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, अदरवाइज इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स. हमारे दोनों लंग्स के बीच में ये ऑर्गन प्रेजेंट होता है. क्योंकि ये हमारा वाइटल ऑर्गन है और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट के लिए जो बायो में टर्म होता है वो होता है
कार्डियक। इवन डॉक्टर्स जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कहीं भी आपको ये टर्म मिलता है आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू हार्ट। इस हार्ट के अराउंड, ये जो ह्यूमन हार्ट है इसके अराउंड एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिसके अंदर ये हार्ट प्रेजेंट होता है, जो इसकी पूरी पेरिफेरी में, पूरे सरकमफ्रेंस में इसको कवर करती है। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। Peri tells you that it is present in the periphery or circumference, that means it encloses the heart, and membrane का मतलब कोई भी biological covering को बोल सकते हैं हम। So pericardial membrane protects the heart। क्योंकि हम ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। यूजुअली बच्चों को इस डायग्राम को लेबल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे समटाइम गेट कन्फ्यूज्ड कि लेफ्ट पार्ट कौन सा है, राइट पार्ट कौन सा है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको हमेशा याद रहने वाला है कि इनमें से लेफ्ट पार्ट कौन सा है और राइट पार्ट कौन सा है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू दैट। So here is a small little trick which can help you to understand कि हम लेफ्ट और राइट कैसे लिखेंगे। ह्यूमन बॉडी में जब भी हम किसी पार्ट को पढ़ते हैं तो जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उस साइड को हम राइट कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने राइट हैंड से लिख रही हूँ तो ये पूरा पार्ट जो मेरे राइट हैंड के साइड में आएगा वो लेफ्ट होगा और जो मेरे लेफ्ट हैंड के साइड में आएगा वो राइट होगा। यानी कि ये पूरा पार्ट हम जो लेबल करेंगे वो लेफ्ट लेबल करेंगे और यहाँ जो कुछ भी लेबल करेंगे वो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट होगा। दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द हार्ट, इट इज एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम यू स्टडी इन ह्यूमन बॉडी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम मेडिकल स्टूडेंट्स या कोई भी बायोलॉजी पढ़ता है या हम किसी ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम कैडबर को पढ़ते हैं अगर, तो वहाँ पर हम जो लेफ्ट साइड हमारा होगा जब हम डायग्राम बनाते हैं तो राइट साइड को लेफ्ट बनाते हैं और लेफ्ट को राइट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ आई रेज माय हैंड, दिस इज माय राइट हैंड, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से ये लेफ्ट हैंड होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट राइट साइड ऑफ द योर हैंड विल बी द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, बी इट एनी ऑर्गन सिस्टम, सिर्फ सर्कुलेटरी नहीं, और जो राइट होगा वो यहाँ होगा। अब हम कैसे समझेंगे कि इस पूरे बॉडी में, आई मीन इस पूरे हार्ट में, ये कट कर देना सार्थक की वाला पार्ट, ठीक है। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू लेबल दिस। एक छोटा सा ट्रिक है कि जो हमारा राइट साइड होगा उसको हम लेफ्ट लेबल करेंगे और जो हमारा लेफ्ट साइड होगा उसको हम राइट लेबल करेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं, ह्यूमन हार्ट को हमने देख लिया, ये मेरा राइट हैंड है तो मैं यहाँ पर पहले ही लेफ़्ट लिख लूँगी, यानी कि जितनी भी लेबलिंग होंगी वो सारी लेफ़्ट होंगी। और इस साइड में मैं आई कैन राइट RIGHT राइट, यानी कि इधर की सारी लेबलिंग राइट होंगी। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, किसी भी ह्यूमन हार्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं हमेशा ये ब्लड यहाँ पर आता है, मतलब ये कभी ब्लड को पंप नहीं करते हैं, ये सिर्फ ब्लड को रिसीव करते हैं। तो ये जो अपर चैम्बर्स हैं दे आर कॉल्ड एज ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ये ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं। एंड ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट साइड है तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट एट्रियम, हम एट्रिया नहीं लिखेंगे क्योंकि एट्रिया प्लूरल टर्म होता है। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इधर साइड में मैंने लिखा हुआ है राइट एट्रियम, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट पार्ट है तो मैं इसको राइट लेबल करूँगी। लेट्स जस्ट गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नीचे के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये और ये चैम्बर्स हैं, ये ब्लड को पंप करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज ब्लड pumping chambers of heart। ये हमारे हार्ट के ब्लड पंपिंग चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट राइट यू कैन अंडरस्टैंड, दिस कैन बी एज दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम, तो इसको भी हम लेफ्ट वेंट्रिकल ही बोलेंगे। और हम इधर साइड पर आते हैं तो हम इसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड।
अब समझते हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक लाइन है जो हमारे हार्ट के लेफ्ट और राइट पार्ट को बराबर से प्रॉपरली इंटरनली डिवाइड करती है। इस स्ट्रक्चर को हम, जब भी कोई स्ट्रक्चर बायोलॉजी में किसी स्ट्रक्चर को एक्चुअली बीच से डिवाइड करता है तो उस स्ट्रक्चर को हम सेप्टम बोलते हैं। जैसे कि आपका नेजल कैविटी जो होता है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय अ स्मॉल कंपार्टमेंट ओवर देयर विच इज कॉल्ड एज नेजल सेप्टम। ऐसे ही हार्ट के बीच में ये जो लाइन होती है, जो वॉल होती है, इसका नाम हम करते हैं कार्डियक सेप्टम। वी कॉल इट कार्डियक सेप्टम। वाई कार्डियक? क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड है। सेप्टम क्योंकि ये स्ट्रक्चर को अंदर की तरफ से भी डिवाइड कर रहा है। अब हम समझते हैं सल्कस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर नोटिस करें, इफ आई नोटिस दिस पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट, यहाँ आप ध्यान से नोटिस करिए एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर अंदर की तरफ थोड़ा सा इन्वेजिनेशन है, ऐसा यहाँ पर भी है। दिस ऑल्सो सेपरेट्स एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बट ये स्ट्रक्चर अंदर से डिवाइड नहीं कर रहा और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम सल्कस कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम सल्कस कहते हैं, इनको हम सेप्टम नहीं कहेंगे क्योंकि ये इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। इफ आई टॉक अबाउट द पाइप्स ऑफ द ब्लड, आई मीन हार्ट, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए एक पाइप यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, एंड देन देयर इज अ ब्लड वेसल विच इज गोइंग हियर, देयर इज अ ब्लड वेसल विच इज गोइंग हियर एंड देयर इज अ ब्लड वेसल विच इज कमिंग हियर। सो बेसिकली हमें टोटल 4 मेजर ब्लड वेसल्स को पढ़ना है। अगर मैं आपसे ब्लड वेसल्स की बात करूं तो मुझे आपको यहाँ पर एक और ट्रिक बतानी होगी। द ट्रिक इज, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्म्स स्टूडेंट्स। सो अगर हमें बायो में पार्ट्स को पढ़ना है, फंक्शंस को समझना है, तो टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हार्ट के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो होता है आपका कार्डियक, इसीलिए हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन द सेम मैनर लंग्स के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो होता है पल्मोन या पल्मोनरी, राइट। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स को हम कैसे नेम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा दैट ये जो ह्यूमन हार्ट होता है इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लेफ्ट साइड जो हार्ट का होता है और राइट साइड जो होता है उसमें कौन से साइड में किस तरीके का ब्लड होता है। सो हियर इज अ ट्रिक फॉर यू ऑल। ट्रिक इज LORD। Let's just understand how it is going to help you. हम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में याद रखेंगे कि हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड है उसमें जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड यानी साफ सुथरा ब्लड होगा, जिसमें ढेर सारा ऑक्सीजन और बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा। राइट साइड में अगर हम बात करें तो राइट साइड में जो ब्लड होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में जो ब्लड होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आपको पहले ये समझना है कि जो आपका राइट है वो डायग्राम में बायो के लेफ्ट होता है, जो आपका लेफ्ट है वो राइट होता है, वो कोई भी ऑर्गन सिस्टम हो। और व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन हार्ट दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसमें आपको समझ में आता है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड। आगे बढ़ते हैं। अब हमें याद रहेगा कि हमारा इस ऑर्गन का जो पर्पस है, ये ऑर्गन जो है वो क्या काम करता है। ये ऑर्गन बेसिकली क्या करता है कि आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है उसको प्योरीफाई करने के लिए पंप करता है लंग्स की तरफ। तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा, आप ध्यान से देखिएगा, आपकी बुक में भी यहाँ पे जो ब्लड आता है वो हमेशा ब्लू कलर से डिपिक्ट किया जाता है, जस्ट टू शो यू दैट ये वाला ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, राइट। जिस साइड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी ब्लड में, वो ब्लड हम ऑक्सीजनेशन करने के लिए डेफिनेटली लंग्स के पास भेजेंगे। तो जो पाइप ब्लड यहाँ आने के बाद लंग्स की तरफ ब्लड को लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये पाइप कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहलाती है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी मीन्स इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू लंग्स। ये लंग्स से रिलेटेड है। मैंने आपको बता दिया है कि लंग्स से रिलेटेड जो भी पाइप होंगे उसमें हम पल्मोनरी टर्म यूज़ करेंगे।
जब ये ब्लड आपका लंग्स के पास जाता है, दोनों लंग्स के पास, तो ये पाइप आप याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आगे जाकर 2 पार्ट्स में बाइफरकेट होने वाली है, क्योंकि इसको दोनों ही लंग्स को ब्लड प्रोवाइड करना है ऑक्सीजनेशन के लिए। वापस जब प्योरिफिकेशन हो जाता है तो जो साफ ब्लड है वो जिस पाइप में आता है, उस पाइप को हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आपको ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ाऊंगी, बट आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि ये है पल्मोनरी वेन। इसको पल्मोनरी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लंग्स से आ रही है। ये पाइप कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। नाउ ये ब्लड प्योरीफाई होकर इस वाले पार्ट में आएगा, और आपकी बुक ने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर से डिपिक्ट किया है। सो आई एम यूजिंग रेड डॉट्स टू शो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर साफ सुथरा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है वो आएगा, और इस ऑक्सीजन को हमें हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचाना है ताकि वो अच्छे से ATP का फॉर्मेशन कर पाए। तो ये ब्लड यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करता है और वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है, क्योंकि एट्रिया सिर्फ ब्लड को रिसीव कर सकते हैं, पंप नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ब्लड जब यहाँ पर पहुँचता है तो अब ये ब्लड हार्ट के पास तो नहीं रहेगा, इसको हमें पंप करना होगा पूरी बॉडी में। तो यहाँ से ये जो पाइप निकल रही है, इस पाइप को हम बोलते हैं दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। इसका नाम होता है अयोर्टा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो जब ये आगे की तरफ जाएगी तो आप कई बार डायग्राम्स में देखेंगे कि इसमें कई सारी ब्रांचिंग आपको दिखाई गई है। सो नेवर गेट कंफ्यूज, देयर आर स्मॉल लिटिल डिटेल्स जिससे हम पूरे हार्ट के पार्ट को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड को राइट लिखना है और राइट साइड को लेफ्ट लिखना है। फिर उसके बाद में जो पाइप आपके राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लंग्स के पास जा रही है, उस पाइप का नाम पल्मोनरी आर्टरी लिखना है। और क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स हैं तो हमें याद रखना है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी आगे जाके। मूविंग अहेड, जो साफ सुथरे ब्लड को हार्ट तक वापस लाती है लेफ्ट साइड में, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ऑल्दो ये एक वेन है बट देन इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड फिर ब्लड पंपिंग चैम्बर के पास जाएगा, यानी कि वेंट्रिकल के पास। आप नोटिस कर रहे होंगे कि वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है ह्यूमन हार्ट में, वॉल एक्चुअली टेल्स यू अ लॉट अबाउट द स्ट्रक्चर। एट्रिया की वॉल को आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी थिकनेस जो है वो वेंट्रिकल की वॉल के थिकनेस के कंपेयर में कम है। आपको ये समझना पड़ेगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑरिकल्स होते हैं या एट्रिया होते हैं ये सिर्फ ब्लड को रिसीव करते हैं, यहाँ पर सिर्फ ब्लड आता है, तो इनमें इतना प्रेशर नहीं होता है कि इनको वॉल्स को बहुत थिक करना पड़े। बट इफ़ आई टॉक अबाउट वेंट्रिकल्स, तो यहाँ पर ये ब्लड को पंप करते हैं। राइट साइड का वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ, जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा ताकि ये ऊपर की तरफ जा सके, तो इसकी वॉल थिक होती है। अगर हम वेंट्रिकल्स में भी कंपैरिजन करें तो इस साइड के वेंट्रिकल का मैंने वॉल थिक बनाया है, क्योंकि ये वेंट्रिकल जो है इसमें सबसे मैक्सिमम प्रेशर होता है। इट हैज़ टू पंप द ब्लड to every part of your body from head to toe, and that's why wall is tolerating a lot of pressure, और ये बहुत thick होती है ताकि ये कोलैप्स ना करे, बर्स्ट ना करे। सो ये आपके पूरे हार्ट का ओवरऑल लेबलिंग है। मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इन पाइप्स की जो यहाँ पर है, ये बेसिकली आपकी बॉडी से खराब ब्लड, यानी कि बॉडी में सेल्स के अंदर, आपकी पूरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, तो सेल्स में जब मेटाबॉलिज्म होता है, स्पेसिफिकली जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो एटीपी बनाने के दौरान बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सेलुलर वेस्ट जनरेट होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के थ्रू ले जाकर हम हार्ट में डंप करते हैं, क्योंकि ये हार्ट ही है जो अगेंस्ट ग्रेविटी लंग्स तक इस ब्लड को पहुंचाएगा, और ताकि उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ऑक्सीजन ऐड कर सकें। तो आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ से जो पाइप यहाँ ब्लड ले जाती है, उस पाइप का नाम वेना कैवा होता है। दिस एंटायर पाइप इज कॉल्ड एज वेना कैवा। लेकिन क्योंकि हमारा ब्रेन भी है, हमारे लोअर पार्ट्स भी हैं बॉडी के, तो ये सारे पार्ट्स फंक्शन करते हैं और इन सब में CO2 बनेगा, और हमें हर जगह से CO2 कलेक्ट करना है। तो ये पाइप जो भी पाइप आपके ऊपर वाले हिस्से से, हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी,
उस पाइप को वेना कावा तो नहीं बोलेंगे, हम उसको सुपीरियर वेना कावा बोलेंगे, बिकॉज ये हार्ट के ऊपर के हिस्से से ब्लड लेकर आ रही है। और जो पाइप बॉडी के निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, इसको इंफीरियर वेना कावा कहते हैं लोकेशन के बेसिस पर। और ये दोनों पाइप आगे जाकर इस तरीके से यूनाइट हो जाती हैं, दे फॉर्म अ सिंगुलर पाइप विच इज कॉल्ड एज वेना कावा. It just dumps the deoxygenated blood into the heart.